Hello everyone, Mayank here. So today we are going to learn about overflow, position and float property. So this is the fifth video of the CSS series, and without wasting any time, let's start. Position property. So the position property specifies the types of positioning method used for an element. So position property से हम position change कर सकते हैं of an element. So there are 5 different position value, namely static, relative, fixed, absolute and sticky. So let's learn one by one each. Static position. So an element with the position static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. Static position use करने से हमें कुछ difference नहीं दिखेगा. It will stay as it is, and HTML elements are position static by default. So by default HTML elements हमारे static position में ही होते हैं. So ये property लिखने से कुछ changes नहीं होगा हमारे elements में. Position relative. An element with the position relative is position relative to its normal position. So relative position use करने से हमारे element relative हो जाएंगे वो position में जो कि वो पहले normal थे. So it doesn't make sense now, but while coding it will. Fixed position. So जैसा कि हम नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि the position of an element will be fixed. So an element with the position fixed is position relative to the viewport, which means it will always stays in the same place even if the page is scrolled. भले ही हम पेज को स्क्रॉल करेंगे, जो एलिमेंट में हमने फिक्स्ड पोजीशन की प्रॉपर्टी डाल दी तो वो फिक्स्ड ही रहेगा. So the top, right, bottom and left properties are used to position the element. So by using these 4 properties we can choose कि हमारा एलिमेंट कौन से साइड में फिक्स्ड होगा. An element with the position fixed is position relative to the viewport, which means it always stays in the same place even if the page is scrolled. मैं आपको example के लिए now position absolute. So an element with the position absolute is position relative to the nearest ancestor. So ये ancestor क्या है? So these are all the textbook definition. ये हम practically जब कोड करेंगे सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाया, बट समझने के लिए अगर मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट प्लेस्ड किया है और उसके बाद मैंने अगर कोई एलिमेंट में एब्सोल्यूट पोजीशन लगाया, सो वो उसके एंसेस्टर मतलब कि जो उसका पहले एलिमेंट है जो कि कोई पोजीशन है कोई जगह पर, सो दिस एलिमेंट विल बी रिलेटिव टू दिस एलिमेंट जो कि नए वाले एलिमेंट का एंसेस्टर है. नाउ वी विल लर्न स्टिकी पोजीशन. सो एन एलिमेंट विद द पोजीशन स्टिकी is position based on the user's scroll position. So a sticky element toggles between relative and fixed depending upon the scroll position. It is position relative until a given offset position is met in the viewport, then it stick in the place like position fixed. So there are 4 ways in which you can scroll, either up, down, left or right. So sticky position यूज करने से आप वो पोजीशन, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एलिमेंट आप या डाउन स्क्रॉल करने पर फिक्स है एंड ऑल्सो लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करने पर वो रिलेटिव हो कोई एलिमेंट के, सो देन यू कैन यूज दिस स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी. Z index. So when element are positioned they can overlap other elements. The Z index property specifies the stack order of an element. Which element should be placed in front, behind the other. So using Z index आप कोई एलिमेंट को किसी के फ्रंट में रहना है या किसी के बिहाइंड में रखना है, किसी एलिमेंट के फ्रंट में रखना है या किसी एलिमेंट के बिहाइंड में रखना है. You can control that by using the Z index. So Z index has 2 values. It can be either positive or negative. If Z index is -1, then it will be placed behind the text, and if the ID is +1, then it will overlap. So guys, let's see position property and Z index. I know आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे by reading all the definitions जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखे थे. So let's code it guys, because programming is all about practical application. So now let's see position property. So यहाँ पर मैंने position.html के नाम से एक फाइल सेव कर दिया and I have used your h1 tag position property, और हम अब डिस्कस करेंगे static position. So I have written p tag with some word, और हम अब इसे p tag को स्टाइल करेंगे.
और इसे हम पोजीशन देंगे स्टैटिक। नाउ लेट्स सेव इट, और अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइस कि जो हमारा पोजीशन है, ये कलर इतना विजिबल नहीं है, इसे मैं रेडी कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी गाइस जो हमारा पी एलिमेंट है वो पोजीशन हो गया बाय स्टैटिक। सो स्टैटिक पोजीशन हमने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, इट इज़ ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। सो ये यूज़ करने से आपको आपका एलिमेंट कोई स्पेशल पोजीशनड, कोई स्पेशल जगह पर पोजीशन नहीं हो जाएगा, इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। एंड गाइज नाउ लेट्स सी रिलेटिव पोजीशन। मैंने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव लिख दिया एंड यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी वैल्यू डाल दूंगा रिलेटिव। नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी पोजीशन रिलेटिव, वो नॉर्मल पोजीशन के थोड़ा रिलेटिव आ गया। आपको इसमें कुछ मच डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर माइनर डिफरेंस है कि जो हमारा पोजीशन नॉर्मल होगा उसके थोड़ा सा रिलेटिव हो जाएगा इफ़ यू यूज़ पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एंड गाइज नाउ लेट्स सी एब्सोल्यूट पोजीशन। सो जैसे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो मैंने पी टैग के अंदर लिख दिया यहाँ पर। एंड आई हैव यूज टू div क्लासेस, जिसका कि फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया रिलेटिव और सेकंड मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट। सो फर्स्ट में मैंने डॉट रिलेटिव लिख दिया यहाँ पर, डॉट जो क्लास का नाम है, और मैंने यहाँ पर इसे पोजीशन रिलेटिव दे दिया और इसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। एंड नाउ लेट्स सेव इट एंड हम अपने आउटपुट पर जाके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइस जो डेफिनेशन था पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू का कि एन एलिमेंट विद द पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like fixed। so आप देख सकते हो जो इसका ancestor जो कि हमने पहले लिखा था relative था फर्स्ट वाला, so उसका ancestor हो गया, so उसके ancestor के हिसाब से वो relatively position हो गया। so this is the function, so this is how position absolute property works। so guys now we will look position fixed property। so यहाँ पर मैंने एक p tag लिख दिया जिसका कि क्लास मैंने लिख दिया fixed, एंड यहाँ पर मैंने इसे स्टाइलिंग दे दिया पोजीशन फिक्स्ड। और जो हमारा ये p टैग है वो टॉप से 20% नीचे होगा और राइट, और ये एक्सट्रीम राइट में होगा क्योंकि हमने राइट में यहाँ पर 0 असाइन कर दिया। और विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पर 300 पिक्सल और बॉर्डर मैंने दे दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइज ये हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। सो फिक्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि वो फिक्स रहेगा इवन इफ वी स्क्रॉल द पेज। तो हम कुछ पी टैग यहाँ पर डाल, यहाँ पर मैंने एक लाइन ब्रेक दे दिया और फिर मैं यहाँ पी टैग में लोरेम 5000 वर्ड्स यहाँ पर दे देता हूँ। नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइज ये हमारा लोरेम 5000 वर्ड्स का हो गया। ये मैंने 5000 इसलिए डाला कि हम स्क्रॉल कर सके हमारा पेज। तो अगर मैं इसे स्क्रॉल भी करूँगा you can see this, ये जो हमारा div एलिमेंट है वो यहाँ पर fixed ही है। so in this way you can use position property fix। now let's see the last property। so the last property guys is sticky position। so let's change it to sticky। so yes मैंने p एलिमेंट में यहाँ पर लिख दिया है I am sticky position और इसे मैंने क्लास दे दिया sticky, और यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक टैग डाल दिया। लॉरेम एप्सन की मदद से मैंने यहाँ पर 5000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पर मैंने स्टिकी को पोजीशन स्टिकी डाल दिया और ये हमारा टॉप पर रहेगा एकदम। और इसे मैंने ये एकदम टॉप पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप को 0 असाइन कर दिया और पैडिंग मैंने दे दिया 5 पिक्सल्स और इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम #EEE। नाउ लेट्स सेव इट। तो हियर यू कैन सी गाइस हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है। तो पोजीशन स्टिकी हमने पढ़ा था कि जो भी प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू के मदद से हम उसे स्टिक वहाँ पर करेंगे और जैसे हम स्क्रॉल करेंगे वो वहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा, वो वहाँ पर स्टिक हो जाएगा। सो जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ, सो एज यू कैन सी ये यहाँ पर स्टिक हो गया। अगर मैं इसे स्क्रॉल भी करूँ ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये पोजीशन ऊपर ही जाकर स्टिक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप 0 लिख दिया। सो इसके लिए ये पोजीशन स्टिकी प्रॉपर्टी के मदद से ये टॉप पर जाके वहाँ पर स्टिक हो जा रहा है। हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। सो इन दिस वे यू कैन यूज स्टिकी पोजीशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशन गाइज। सो नाउ लेट्स सी CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देना है तो।
So the overflow property specifies whether to clip the content or to add scroll bars when the content of an element is too big to fit in the specified area. So overflow property का हम यूज कुछ ऐसा करेंगे, जैसे कि आपका ये वेब पेज है और आपके पास जगह नहीं है कंटेंट लिखने का, और आपके पास इतना ही जगह है जो कि ये येलो लाइन में डिस्प्लेड है। सो ऐसे टाइम पर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। So there are four values for the overflow value. Let's see each one by one. The visible value. The overflow value is not clipped in this. The content renders outside the element box. So यहाँ पर होगा क्या, जो आपने बॉक्स स्पेसिफाइड किया होगा, so visible value डालने पर वो content उस बॉक्स के बाहर आने लगेगा, hidden. The overflow is clipped and the rest of the content will be invisible. So इससे होगा क्या कि जो भी आपका कंटेंट है जो ओवरफ्लो हो रहा है वो एक जगह पर रहेगा, बट द रेस्ट ऑफ द कंटेंट वो आपको दिखेगा नहीं, इट विल बी इनविजिबल। स्क्रॉल, द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड द स्क्रॉल बार इज एडेड टू सी द रेस्ट ऑफ द कंटेंट। सो यहाँ पर होगा ये कि आपने जो जगह असाइन किया था अपना कंटेंट डालने के लिए, सो वहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। सो बाय यूजिंग दैट you can see the rest of your content which you wanted in that particular area. Auto, similar to scroll but it adds scroll bars only when necessary. So ये scroll के काफी similar है, but ये scroll bars तभी लाएगा जब आप अपना माउस उस पर hover करोगे। So guys, now let's see each overflow property and हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कब और हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स कोड इट गाइस। नाउ लेट्स सी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। सो हमने 4 तरीके के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़े थे। सो फर्स्ट वन वाज विजिबल ओवरफ्लो। सो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी एंड h2 टैग यहाँ पर ओवरफ्लो विजिबल दे दिया। यहाँ पर मैंने h1 और h2 के बीच में एक लाइन ब्रेक डाल दिया और मैंने यहाँ पर div टैग का यूज़ किया है। This is random paragraph and then lorem ipsum with some word. So visible overflow property दिखेगा कैसे, अब हम वो देखते हैं। So now let's style first div tag. So यहाँ पर मैं background color ये दे रहा हूँ, आप देख सकते हो क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कलर है। यह एक ग्रे का शेड है जो कि हर वेबसाइट में यूज़ होता है। सो इसके लिए यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन में भी आ गया, इट्स #EE एंड यहाँ पर मैं इसे विड्थ दे दूंगा 100 पिक्सल का, हाइट में इसे दे दूंगा 70 पिक्सल, और जो हमारा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होगा उसको हम बॉर्डर दे देंगे सॉलिड 1 पिक्सल। कलर को हम ले लेते हैं रेड कि आपको अच्छे से वो दिखे। और अब हम यूज़ करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। सो मैं यहाँ पर ओवरफ्लो लिख देता हूँ एंड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्क्रॉल विजिबल। सो जैसा कि हम यहाँ पर विजिबल डिस्कस कर रहे हैं, आई विल सिलेक्ट विजिबल यार एंड नाउ लेट्स सेव इट। सो ओवरफ्लो विजिबल प्रॉपर्टी से ये हुआ कि जो हमारा कंटेंट है वो क्लिप्ड नहीं है इन दिस ओवरफ्लो रीजन, और ये यहाँ पर इस बॉक्स के बाहर रेंडर होने लग गया। सो दिस इज द ओवरफ्लो विजिबल प्रॉपर्टी गाइस। नाउ लेट्स सी ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर मैंने सब सेम रखा है, बस अब मैं यहाँ पर ओवरफ्लो विजिबल के जगह यहाँ पर मैं हिडन लिख दूंगा। नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस बाय यूजिंग ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी जो हमारा कंटेंट है जो भी हमने पीटर डिव टैग के अंदर लिखा है वो क्लिप्ड तो हो गया, बट बाकी के जो भी वर्ड्स है वो हिडन हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड हिडन। नाउ लेट्स सी ओवरफ्लो स्क्रॉल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर फिर से मैंने सब सेम रखा है, हम एक ही एग्जाम्पल में ओवरफ्लो के डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यूज ऐड करके देख रहे हैं। नाउ आई विल राइट हियर स्क्रॉल। सो नाउ लेट्स सेव इट। सो गाइस आप देख सकते हो कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रॉल आ गया है। इसका मैं विड्थ और हाइट यहाँ पर बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये विड्थ को मैं पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ हमारे पेज पे, और जो हमारा हाइट है वो मैं सेम रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं विड्थ ले लेता हूँ 100 पिक्सल के जगह यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे 100%। नाउ लेट्स सेव इट। तो आप देख सकते हो इसने पूरा एक्वायर कर लिया विड्थ। तो वहाँ पर मैंने और वर्ड्स डाल दिए। सो आप देख सकते हो इसने विड्थ पूरा एक्वायर कर लिया है हमारे पेज का जितना था, और हाइट मैंने सेम ही रखा है।
एंड यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल प्रॉपर्टी के वजह से यहाँ पर स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। सो जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, यू कैन सी हम अप डाउन कर सकते हैं एंड वी कैन व्यू कि हमने क्या यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। नाउ लेट्स सी ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी। नाउ आई विल टाइप हियर हिडन एंड लेट्स सेव इट। अब हम देखते हैं ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो ऑटो एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑटो। Now let's save it. And guys, this is very similar to overflow auto property, but it will add scroll bar only when it is necessary. So in this way we can use overflow, hidden, visible, auto and scroll property. So this was all about overflow property. Float. So the float property is used for positioning and formatting content. So इससे होगा ये कि हम अपने content को किसी जगह पर पोजीशन कर सकते हैं एंड वी कैन फॉर्मेट दैट। सो फ्लोट प्रॉपर्टी का एक पॉपुलर एग्जांपल है ये। आपने देखा होगा वेब पेज पर कि किसी पर्सन का इमेज लेफ्ट या राइट पर असाइंड है और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज होता है। यहाँ पर 4 वैल्यूज है फ्लोट प्रॉपर्टी के। लेफ्ट, द एलिमेंट फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर। राइट, द एलिमेंट विल फ्लोट टू द राइट ऑफ इट्स कंटेनर। नन, the element does not float. So ये use करना ना करना एक ही बात है because this is default and inherit. The element inherits the float value of its parent. हम लेफ्ट या राइट यूज करेंगे, ये दो को हम यूज नहीं करने वाले। तो इसके लिए हम ये नहीं पढ़ेंगे। एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि आपको हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। हर एक प्रॉपर्टी के वैल्यूज को याद रखना जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट हियर preparing for the exams. We are just here for learning new skill and applying it. Clear element. So the clear property specifies what element can float beside the cleared element and on which side. Clear element से होगा क्या कि ये element को specify कर देगा कि तुम्हें float कहाँ पर करना है besides the clear element और कौन से side पर. The clear property can have one of the following values which is none, left, right, both and inherit. We will use left, right most of the time. So now let's see float elements, clear elements क्या है इसका एक एग्जांपल कोड करके देखते हैं। So let's code it guys. So guys अब हम देखते हैं कि float प्रॉपर्टी कैसा होता है। So यहाँ पर मैंने float.html के नाम से एक फाइल सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल CSS बना दिया जिसका कि मैंने नेम कर दिया float.css। So हम यहाँ पर एक CV बनाने वाले हैं जिसका कि मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। और जैसा कि CV में अक्सर होता है हमारा फोटो लेफ्ट या राइट साइड पर होता है और फोटो के बाजू में हमारा इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम एक यूज़र का इमेज डाउनलोड कर लेंगे गूगल से। सो यहाँ पर मैंने गूगल पर लिख दिया user.png और मैंने png इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ऐसा इमेज चाहिए जिसका कि कोई बैकग्राउंड ना हो। और मैं यहाँ पर ये इमेज को सेव कर देता हूँ अपने लैपटॉप में with the name user. So let's save it. So मैंने user का png फॉर्म गूगल से डाउनलोड कर लिया। So अब हम इमेज टैग की मदद से यहाँ पर लिख देंगे user डॉट, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है user.jpg का। So यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और ऑल्ट में हम लिख देंगे user image। और जैसा कि हमें इमेज को भी विड्थ, साइज या फिर यहाँ पर मैं इमेज में एक क्लास डाल दूंगा। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ ये रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा, बट यहाँ पर मैं अभी नेमिंग दे देता हूँ। क्लास का नाम मैंने दे दिया फोटो और फिर मैं यहाँ पर एक p टैग दे देता हूँ जिसमें कि मैं लॉरेन 99 वर्ड्स का ले लेता हूँ और मैं इसे क्लास दे देता हूँ और मैंने इसे क्लास दे दिया इन्फो और एक मैं यहाँ पर p टैग डाल दिया और इसमें मैं लॉरेम ले लेता हूँ 47 वर्ड्स का और यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ क्लियर क्योंकि हम इसमें क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स सेव इट। अब हम अपने आउटपुट पर जाके देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। सो गाइज हियर यू कैन सी कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। सो यस मैंने टाइटल को चेंज कर दिया यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। पर अक्सर हमने वेब पेज पर देखा है कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है यूजर्स के बारे में, वो अक्सर इमेज के लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग अपॉन विच पोजीशन इमेज इज। सो ये पैराग्राफ यहाँ लाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का। सो अब हम CSS का यूज करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने H1 को कुछ स्टाइलिंग कर दिया और
इसे हम सेव करते हैं और ये आउटपुट में आप कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि आप देख सकते हो। अब हम अपनी इमेज को स्टाइल करते हैं। सो जैसा कि मैंने इमेज में क्लास दे दिया है फोटो, सो यहाँ पर मैं डॉट फोटो लिख दूंगा और इसे मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ जो कि 10 पिक्सल का होगा, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसमें ग्रे। और मुझे चाहिए कि जो मेरा इमेज है वो लेफ्ट में हो, सो यहाँ पर मैं फ्लोट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लेफ्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दूंगा। सो नाउ लेट्स सेव इट और मैं इसे विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल दे देता हूँ। नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर वी कैन सी गाइस कि हमारा आउटपुट कुछ अब ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हमने जो पैडिंग डाला था उस पर बैकग्राउंड कलर आ गया और जो हमारा टेक्स्ट था जो कि हमें चाहिए ताकि इमेज के लेफ्ट साइड पर आए वो आ गया। बट अगर मुझे चाहिए कि ये जो मैंने सेकेंड पैराग्राफ लिखा है, इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोटो इट शुड अपीयर बिलो द फोटो, तो हम कर सकते बाय यूजिंग क्लियर प्रॉपर्टी। तो नाउ वी विल लर्न क्लियर प्रॉपर्टी। हमें ये दूसरा पैराग्राफ जो था वो इमेज के नीचे लाना है। सो यहाँ पर मैंने क्लास क्लियर प्रॉपर्टी डाल दिया था। अब मैं इसे यहाँ पर डॉट क्लियर लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्लियर लिखकर एंटर दबा दूंगा। सो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बोथ लेफ्ट एंड राइट, और जैसा कि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी पर जो साइड लिखा है वही हम क्लियर पर डाल देंगे लेफ्ट। सो नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस जो हमारा पैराग्राफ इमेज के लेफ्ट साइड पर आ रहा था वो अब इमेज के बिलो आ रहा है। ये ऐसा हो इसलिए हो सका बिकॉज हमने यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया। बट अगर अभी मुझे चाहिए कि ये जो मेरा इमेज है वो लेफ्ट साइड के जगह राइट साइड पर आ जाए, सो सिंपली हमें कुछ कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी पर मैं अगर यहाँ पर राइट लिख दूँ एंड नाउ लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस जो मेरा इमेज लेफ्ट साइड पर आ रहा था वो राइट साइड पर आ गया, और ये हमारा पी टैग है वो इमेज के लेफ्ट साइड पर ही आ रहा है, और ये हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो इमेज के साइड पर आ रहा है। बट मुझे चाहिए कि ये इमेज के नीचे हो। मैंने आपको बोला था कि जो आप फ्लोट प्रॉपर्टी डालोगे वही आपको क्लियर प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ। नाउ लेट्स सेव इट। सो यार यू कैन सी वही पैराग्राफ जो है इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ऑन द साइड ऑफ द इमेज वो अब नीचे आ गया इमेज के। सो इन दिस वे यू कैन यूज फ्लोट प्रॉपर्टी। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये हर वेबसाइट में यूज होता है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोई वेबसाइट को चेकआउट करोगे तो फ्लोट प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज होते ही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो आज के वीडियो में हमने देखा ओवरफ्लो, पोजीशन एंड फ्लोट प्रॉपर्टी। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट, और ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो आपके वेबसाइट को एक यूनिक एंड प्रोफेशनल लुक दे सकती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक लिंक्स, लिस्ट एंड टेबल्स। ये लिस्ट एंड टेबल्स हमने HTML में भी देखा था, बट लिस्ट एंड टेबल्स को हम कैसे स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली, और मिलते हैं अब